جی ہاں، تو ہماری آج یہ 28 کلاس آج شروع ہوتی ہے، جس میں ہم کر رہے ہیں اسم کی اقسام۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے کیا تھا اسم فاعل اور اسم مفعول، تو بہت ساری فرمائش آئی کہ اس کو ریپیٹ کر دیں، ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج تھوڑا ہلکے نوٹ پہ شروع کرتے ہیں، آپ لوگ کی ایک چھوٹی سی پارٹی کرتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ کچھ کیک۔ اقرا، آپ مائک انمیوٹ کر کے آ جائیں میرے ساتھ۔ جی میم۔ جی ہاں، تو یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کچھ کیک، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ یس، سے پوچھوں کہ جیسے ہی میں کیک ورڈ آپ سے بولوں تو کس شیپ کا کیک آپ کے دماغ میں آتا ہے؟ راؤنڈ۔ راؤنڈ آتا ہے نا؟ تو آپ جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں ہم نے تو ہارٹ شیپ کا بھی کیک لے کے آئے ہوئے ہیں ہم۔ یس، یہ شیپ دماغ میں آتا ہے ہم میں سے کسی کو بھی، اگر ہم اسکرین پہ یہ چیز نہ لا رہے ہوتے اور میں پوچھتی کہ میں آپ کے لیے ایک کیک لائی ہوں، تو فوراً ہی آپ کے دماغ میں ایک گول کیک دماغ میں آ رہا ہوتا۔ اور اسی جی کو لے کے میں کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھا لوں۔ دیکھیں کیک یہ بھی ہے، یہ ہارٹ شیپ کا کیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب جب صرف ہم کیک کہیں تو آپ اس کو اپنے ذہن میں لیں گی فاعل، کام کرنے والا کیک ہے یہ، ٹھیک ہے، صرف کیک ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کیک ٹن ہے۔ اس کیک یس، کے اندر سے جو بھی کیک نکلے گا، اس ٹن کے اندر سے جو کیک نکلے گا صرف وہی اسم فاعل کہلائے گا۔ یعنی دیکھیں یہ سارے ہی کیک فاعل کہلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سبھی کیک ہیں، یہ بھی کیک ہے، یہ بھی کیک ہے، اور یہ بھی کیک ہے، یہ کھانے والی چیز ہے سب، ٹھیک ہے۔ ہمارا دل چاہا ہم نے ہارٹ شیپ کا کیک بنا لیا، ہمارا دل چاہا ہم نے ریکٹینگولر کیک بنا لیا، اور یہ سرکولر کیک ہے۔ یہ تینوں ہی کیک ہوئے اور تینوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاعل ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب میں کیک کہوں تو کیک ورڈ آپ لیں گی ایز اے فاعل، جبکہ کیک ٹن کے اندر بھی دو لفظ ہیں نا، تو اس شیپ والے کیک کو ہی کہیں گی آپ اسم فاعل۔ اب دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس اسم فاعل کی یہ پہچان۔ دیکھیں یہ راؤنڈ اسی کیک ٹن سے ہم نے جو ہے کیک نکالا تو یہ بن گیا اسم فاعل۔ اب کیک کا ٹن میرے پاس موجود تھا، میرا اسی کیک ٹن میں پیزا بیک کرنے کا دل چاہا تو ہم نے پیزا بیک کر لیا۔ اب یہ چیز دوسری ہے لیکن یہ بھی کیا ہے؟ چونکہ اسی وزن پر ہے، اسی شیپ میں ہے، اس لیے یہ بھی اسم فاعل ہے، کھانے کی چیز ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہاں پہ یہ کیک نہیں ہے، یہ پاستا بیک ہو گیا اور پھر یہ دوسرا کیک ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اسم فاعل ہیں۔ لیکن اس اسکرین پہ اقرا، کیا یہ اسم فاعل ہو سکتا ہے؟ نو، کیوں؟ کیونکہ یہ ٹن سے نہیں نکلے نا آپ۔ بالکل، ہم نے یہ کہا کہ وہ کیک جو صرف اس ٹن سے نکلے گا، یا وہ کھانے والی چیزیں جو اس ٹن سے نکلیں گی، صرف وہی اسم فاعل کہلائیں گی۔ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں چیز میٹر نہیں کر رہی ہے، کیک میٹر نہیں کر رہا ہے، اس کا وزن میٹر کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس ٹن سے کیک نکلے یا پیزا نکلے یا پاستا نکلے۔ بات کیا ہے یہاں پہ؟ اسم فاعل میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم کام کر رہا ہو، یعنی وہ کیک ہو، آپ کیک کو سمجھ لیں کام کرنے والا، بلکہ اس شیپ سے نکلا ہوا ہر اسم، اس شیپ سے نکلی ہوئی ہر کھانے کی چیز اسم فاعل کہلائے گی، چاہے وہ کیک ہو، چاہے وہ پاستا ہو، چاہے وہ پیزا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس اسکرین پہ یہ کیا ہوگا؟ یہ صرف فاعل کہلائے گا، کیک کہلائے گا۔ اسم فاعل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ گول والے ٹن سے نکلا ہی نہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی فاعل ہے، کیک تو ہے لیکن گول نہیں ہے، جو بھی گول ٹن سے نکلے گا صرف وہ اسم فاعل کہلائے گا۔ تو اس اسکرین پہ اگر کوئی اسم فاعل ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے، یہ والا کیک کیا ہے؟ اسم فاعل، فائل۔ اسی وزن پر ہے، یہ اسی شیپ میں ہے۔ عربک کے ورڈز ان کی جگہ رکھتی ہوں۔ یہ زیدن ہے، ٹھیک ہے، یہ کیک تو ہو گیا، یہ زیدن یہاں پہ رکھ سکتے ہیں،
यहाँ पे जो है उस्मानू रख सकते हैं. तो ये सारे देखें, हमने चूंकि उसके ऊपर पेश लगाई है, अभी मैं अरबिक में भी लेके आ रही हूँ, नीचे सब कुछ आ रहा है. अभी बस आप लोग थोड़ा सा खुश हो लें केक देख के. बात ये है कि हर वो इसम तो देखे है ना, जो काम करेगा, जो केक बनेगा वो फाइल कहलाएगा, जो केक बन गया. लेकिन सिर्फ वही इसमें फाइल कहलाएगा जो कि फाइलुन के वजन पर हो, इस शेप से निकलेगा जो, वो केक या वो चीजें इसमें. तो आप ये समझें कि ये वजन जो है वो इसमें फाइल जब हम कहें तो आपके दिमाग में केक नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में शेप आनी चाहिए, ये टिन आना चाहिए. इसीलिए मैं ये स्क्रीन लेके आई आपके पास कि जब मैं इसमें फाइल कहूं तो आपके दिमाग में ये टिन आना चाहिए, केक नहीं आना चाहिए. लास्ट क्लास में प्रॉब्लम यही हुई कि जब मैं कहती हूं जब मैंने कहा इसमें फाइल, आप सीधे केक पे ही जंप कर गए. आपने सोचा कि काम करने वाला नहीं, काम करने वाला नहीं, फाइलुन के वजन पर. अभी जब हम पहले पढ़ा रहे थे पिछले उसमें, तो हमने अफआलू के वजन बताया ना, अफआलू, फलाऊ, इस वजन. तो ये फाइलुन यहाँ पे एक वजन है, और इस वजन में काम करने वाले का मफहूम मौजूद है. ठीक है, खाने वाली चीज, अब इस टिन में आप खाने वाली चीज ही डालेंगी ना, कोई दूसरी चीज तो नहीं डालेंगी, पेंसिल तो नहीं डालेंगी, पेपर पेन ये सब तो नहीं डालेंगी, इसको बिन तो नहीं बनाएंगी आप. इसके अंदर आप कुछ खाने की चीजें ही बेक करेंगी. ठीक इसी तरह जब ये कहा जाए कि इसमें फाइल, तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अब ये इस्म काम करे, लेकिन इस इस्म के अंदर काम करने वाले का मीनिंग मौजूद होगा कि ये सारी चीजें इसमें फाइल हैं और ये जो है फाइल है. अब आगे हम आज काफी सारी स्लाइड्स लेके आए हैं. कोशिश है कि अल्लाह से, और दुआ है कि समझ में आ जाए. रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर. फाइल को देख लेते हैं पहले. आप देख रही हैं ये सारे फाइल हैं. वो इस्म जो काम कर रहा हो वो फाइल कहलाता है. अगर हम सिर्फ फाइल वर्ड यूज करें तो फाइल जब भी वर्ड बोलेंगे तो उसका मतलब है काम करने वाला, और वो काम कर ही रहा है. वो इस्म जो काम कर रहा हो वो फाइल कहलाता है. और ये फाइल हमेशा रफा की हालत में होता है. जुमले में कैसा होगा? रफा की हालत में होगा. और ये किसी भी वजन में हो सकता है. आप सामने देख रही हैं कि हार्ट शेप में भी हो सकता है. ये ज़ैदुन, इब्राहिमु, उस्मानु, कुछ भी हो सकता है. तो ये किसी भी वजन पर हो सकता है. जरूरी नहीं है कि कोई खास वजन फाइल का हो. आप कोई भी नाम रख लें, कलम रख लें, पेन रख लें, कोई भी चीज रख लें, कोई भी इस्म है, वो सारा अगर काम कर रहा है तो वो फाइल कहलाएगा. तो ये किसी भी वजन पे हो सकता है, लेकिन हालत क्या होगी इसकी? सिर्फ रफा. जैसे एग्जांपल देखें, ज़ैदुन, महमूदुन, उस्मानु, मरियमु वगैरह. ठीक है, तो फाइल क्लियर हो गया सबको. जब भी सिर्फ फाइल वर्ड आप पढ़ें कहीं, सिर्फ फाइल वर्ड आप सुने कहीं, तो आप बेशक ये समझें कि वो लफ्ज उस जुमले में काम कर रहा है, और ये हमेशा हालत रफा में होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने एराब की क्लास में देखा. और ये किसी भी वजन पर हो सकता है. जैसा ये पिक्चर आपके दिमाग में है, ये राउंड, सर्कुलर, हार्ट शेप, किसी भी शेप में हो जाए, ये फाइल है. लेकिन ये सब केक ही होगा. मैंने केक से आपको रिलेट किया था, काम करने वाला. ये सेंटेंस देखें, ज़रबा ज़ैदुन. अब यहाँ पे ज़ैदुन रफा की हालत में है. जैसे ही इस सेंटेंस में ज़ैदुन आपको रफा की हालत में दिखाई दिया, आप तर्जुमा करेंगी ज़ैद ने मारा, कि ज़ैद काम कर रहा है. कि ज़रबा ज़ैदन, जैसे ही हमने ज़ैदुन की हरकत को ज़ैदन में चेंज कर दिया, तो अब क्या हो गया? ये उसने ज़ैद को मारा, अब ज़ैद मफूल बन गया. तो यहाँ पे ज़ैद फाइल है, जबकि यहाँ पे ज़ैद क्या है? मफूल है.
آپ نے کیا دیکھا کہ جب کوئی اسم کسی سینٹینس میں فاعل ہے تو وہ کس حالت میں ہے، اس کو کس حالت میں رہنا ہے، رفع کی حالت میں ہی رہنا ہے. اگر وہ نصب یا جر کی حالت میں گیا تو اب ہم اس کو فاعل نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں اب کیا زید کو ہو گیا ہے نا، یہاں پہ زید نہیں تھا اور یہاں پہ یس زید کو ہو گیا. فاعل سب کو کلیئر ہے. فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، اور وہ جملے میں کام کر بھی رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اسم فاعل. اسم فاعل جیسا کہ ہم نے کہا، جیسے ہی ہم اسم فاعل کہیں تو آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آنی چاہیے وہ کیکٹن آنا چاہیے. وزن ہے، یہ صرف ایک وزن ہے. کیا وزن ہے؟ فاعلن. یہ صرف ایک وزن ہے جس میں کہ یہاں پہ ف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، عین کے نیچے زیر ہے، اور یہ وزن ہے. ضروری نہیں کہ اس میں فاعل کام کرنے والا ہی، مطلب اس جملے میں کام کر رہا ہو، ہے تو وہ کام کرنے والا. چلیں اگلی سلائیڈ پہ میں دکھا ہی دوں. جیسے خالقن، ٹھیک ہے، خالقن کے دیکھیں میننگ کیا ہے، پیدا کرنے والا. ناصرن، مدد کرنے والا. ظالمن، ظلم کرنے والا. تو اس لفظ کے اندر میننگ تو ہے کام کرنے والے کی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس جملے میں کام کر رہا ہو. یاد رکھیں ایک بار پھر کہ سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ کہ اس میں فاعل صرف ایک وزن ہے. کوئی بھی اسم جو اس وزن، اس کیکٹن کے اندر آ جائے گا وہ اسم فاعل کہلائے گا. اس وزن پر آنے والا اسم جو ہے کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ اسم فاعل ہی کہلائے گا. یہاں تک کہ اس کی پوری گردان، فاعلن کی پوری گردان. زیدن جیسے ہی زیدن بنا تو آپ زیدن کو نہیں کہیں گی کہ یہ فاعل، اب یہ مفعول بن گیا. جبکہ اسم فاعل کی پوری گردان ہی اسم فاعل کہلاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کام کرنے کا مفہوم ہے. کام اس کا کام کرنا ضروری نہیں ہے. ابھی میں قرآن کی بھی آیات لے کے آئی ہوں، وہاں سے بھی آپ دیکھیں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں ہی کیا ہے، اسم فاعل ہیں، کیونکہ دونوں سرکولر شیپ میں ہیں، دونوں ہی فاعلن کے وزن پر ہیں، حالانکہ دو مختلف چیزیں ہیں. وہ اسم جو فاعلن کے خاص وزن پر ہو، اس میں کام کرنے والے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہو. خالقن، آپ خالقن کا ترجمہ کیا کرتی ہیں؟ پیدا کرنے والا. ناصرن، مدد کرنے والا. ظالمن، ظلم کرنے والا. اس سینٹنس کو دیکھیں، ظلمہ کا مطلب ظلم کیا. الظالم. اب دیکھیں یہاں اس کی رفع، اس جملے میں یہ کس حالت، یس یہ یہ رفع، فاعلی حالت میں ہوگا نا. ہاں یہ رفع جی کی حالت میں ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا یہ فاعل ہے. اور یہ کس جی حالت میں ہے؟ یہ مفعولی، یہ جو ہے یہ یہاں دیکھیں نصب کی حالت میں ہے، مظلومہ ہے نا. یس تو یہ نصب یس کی، میں ترجمہ کر دیتی ہوں آپ سمجھیں کہ اس سینٹنس کا ترجمہ ہوگا ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا. یہ ظلمہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ظلمہ ورب ہے، تو یہ پاسٹ ٹینس کی فارم ہے. تو ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا، تو یہاں پہ ظالم کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ اسم فاعل بھی یس ہے نا. یہ اس سینٹنس کے اندر ظالم کیا یس ہے؟ فاعل ہے، کہ اس کے اوپر پیش ہے. یہاں پہ آخر میں اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع کی ہے، اور ہمیں پتا ہے جملے میں رفع کی حالت میں کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. ظلم کرنے والا یس کون ہے؟ ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا. اب یہ سینٹنس بھی دیکھیں، عام طور پر تو ظالم ہی مظلوم پر ظلم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے یس کہ مظلوم جب صبر نہیں کرتا اور عقل بھی استعمال نہیں کرتا تو وہ ظلم کر جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں، ظلم مظلوم الظالم، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ظلم کیا. اب یہاں پہ مظلوم کے اوپر دکھ رہی ہے رفع کی علامت، مظلوم. یہاں اس کا مطلب ہو گیا ظالم پر. الظالمہ، ظالم پر، مطلب ظالم کو یا ظالم پر. تو یہاں پہ اب یہ مظلوم، اب غور سے سنیے،
मजलूमु, ये लफ्ज यहाँ पे फाइल है, लेकिन इसमें फाइल तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यस वजन पर नहीं है। यस ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये फाइल है, लेकिन आप यहाँ पे मजलूमू को इसमें फाइल नहीं कह सकती, क्योंकि उस वजन पर नहीं है। इसी तरह अज़्ज़ालिमा, ये जो है यहाँ पे मफऊल है, मफऊल है। लेकिन ये इसमें यस मफऊल नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें कि ये कौन सा इसम है, तो ये है ये रफा की हालत में, है ये फाइली हालत में, लेकिन ये कौन सा इसम यस है? इसमें मफऊल ही है। इसम मफऊल। जी हाँ, यस इसमें मफऊल है जो कि रफा की हालत में है। यहाँ पे ये इसमें यस फाइल है जो कि नसब की हालत में है। नसब की हालत में। आपने यस देखा कि इसमें फाइल और इसमें मफऊल रफा नसब जर दूसरी हालतों में जा सकते हैं, ठीक है। यस जबकि यस ज़ैदुन जो है वो जब इस हालत में गया तो वो क्या, यहाँ पे फाइल था, यहाँ पे क्या बन गया? वो मफऊल बन गया। मफऊल। हाँ, वो जब उसकी जब एराबी हालत चेंज होगी तो वो काम भी बदल दे रहा है। यहाँ पे देखिए, कुरान से ही आयत लेके आए हम। आपको पता है कि इसका नासिरिन, अब इसका अगर हम वजन पूछें तो नून स्वाद रा, इसका रूट लेटर है नून स्वाद रा, और ये वजन यस इसका बन रहा है, फाइलिन। हमने कहा कि आखिर की हालत ये वजन है इसका, वो तो एराब की वजह से ये ओ यस इसका इसका यस वजन जो है वो नास मतलब कि फाइलुन है। ये जेर तो इसकी पोजीशन की वजह से चेंज होना इसकी मजबूरी हो गया। ये यस इसमें फाइल है और इसका वजन है फाइलुन। लेकिन आप देखें कि इस जुमले में इसकी क्या पोजीशन है? ये जर की हालत में है, जब तो उसके पास ना कोई कुव्वत होगी और ना ही मददगार। अब यहाँ पे देखिए मददगार, एक मिनट इकरा, माइक म्यूट रखें। यहाँ पे नासिरिन, नासिर का मतलब है मदद करने वाला। तो आप देखें ये मफहूम यहाँ मौजूद है। नासिर, मददगार का क्या मतलब होता है? मदद करने वाला। लेकिन इस जुमले के अंदर वो मदद तो नहीं कर रहा, लेकिन मदद करने वाले का मफहूम मौजूद है। तो याद रखें कि इसमें फाइल में काम करने वाले का मफहूम मौजूद है, जरूरी नहीं कि वो काम कर रहा हो। जैसे इस सेंटेंस में देखें तो उसके पास ना कोई कुव्वत होगी और ना ही मददगार। ये बताया जा रहा है कि उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं होगा। इस जुमले के अंदर ये काम तो नहीं कर रहा है, ये जर की हालत में है, लेकिन है ये इसमें फाइल ही, क्योंकि देखिए इसी वजन पर है, फाइलुन के वजन पर है, काम करने वाले का मफहूम आ रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर ये नासिरुन होता तब ये काम कर भी रहा होता और काम इसमें फाइल भी होता और काम करने वाले का मफहूम भी आ रहा होता। इसी तरह कुरान की एक दूसरी आयत देखें, यहाँ पे यही फाइलुन के वजन पे आने वाला इस्म नासिरन नसब की हालत में है। और तर्जुमा देखें, हत्ता कि जब वो देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है तो जल्द ही वो जान लेंगे कि किसके मददगार ज्यादा कमजोर और तादाद में ज्यादा कम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कंपेयर मतलब इस आयत में बताया जा रहा है कि जल्दी ही वो देख लेंगे कि किसके मददगार कमजोर है और तादाद में कम है। तो मददगार, मददगार का क्या मतलब होता है? मदद करने वाला। किसके मदद करने वाले कमजोर है और किसके मदद करने वाले तादाद में कम है। तो इस जुमले में यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, बताया जा रहा है कि मदद करने वाले कम और कमजोर हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाँ नसब की हालत में है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ इन सारी एग्जाम्पल के जरिए एक बार फिर मैं शॉर्ट में बता दूं कि जब आप लफ्ज फाइल देखें
तब आप समझ जाएं कि उस जुमले में वो इस्म काम कर रहा है। जैसे ये फाइल है, ये मफूल है, ये फाइल है, ये मफूल है। लेकिन जब हम कहें कोई इसम फाइल है, तब यहां पे ज़ालिमु इसम फाइल है और यहां पे अज़्ज़ालिमा इसम फाइल है। जो उस वजन पर इस्म आएगा वो इसम फाइल कहलाएगा, चाहे वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। आप देखें कि जब हम जालिम बोल रहे हैं तो आपकी समझ में आ रहा है कि अगर हम जालिम वर्ड बोले तो आप समझते हैं जुल्म करने वाला, लेकिन इस सेंटेंस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे मजलूम जो है वो जालिम पर जुल्म कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से पानी पिलाने वाला, है ना, अगर हम कहें कोई पानी पिलाने वाला है तो क्या मैं उसको कभी पानी नहीं पिला सकती? मैं भी तो उसको पानी पिला सकती हूँ ना। पानी पिलाने वाले को हम पानी पिला सकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो याद रखें कि इसमें फाइल जो है उसके अंदर दो बातें आपको दिमाग में रखनी होंगी कि एक तो वो इस वजन पर आएगा, फाइलुन के वजन पर आएगा। दूसरी बात जो है उसके अंदर काम करने वाले का मफहूम मौजूद होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस जुमले में काम कर रहा हो सकता है कि उसके ऊपर काम हो रहा हो। जैसा कि आपने देखा कि जालिम ही के ऊपर अभी जुल्म हो रहा था। यहाँ पे इस सेंटेंस में आपने देखा कि ये जुल्म करने वाला था, लेकिन इस जुमले के अंदर इसी के ऊपर जुल्म हो गया। तो ये है फाइल और इसमें फाइल की पूरी कहानी। अगर सिर्फ फाइल वर्ड बोला जाए तो आप समझेंगी कि वो काम कर रहा है। अगर हम कहें इस जुमले में फाइल कौन है तो हम बताएंगे ये है। अगर हम कहें इस जुमले में मफऊल कौन है तो आप कहेंगी ये है। यहां पे देखिए, अगर मैं कहूं कि इस जुमले में फाइल कौन है तो आप बिल्कुल वजन को नहीं सोचेंगी, क्योंकि मैंने तो अभी वजन वाली बात ही नहीं की, अभी केक टिन की बात ही नहीं की, मैं तो सिंपल केक की बात कर रही हूं। फाइल, अगर मैं कह रही हूं कि इस जुमले में फाइल कौन है तो आप इसकी एराबी हालत देखेंगी और बता देंगी कि फाइल ये है, ये काम कर रहा है। और अगर मैं पूछूं कि मफूल कौन है तो आप एराबी हालत देखेंगी और कहेंगी मफूल ये है। ये हो गई फाइल और मफूल की कहानी। फाइल और मफूल में काम उस जुमले के अंदर जो कर रहा है वो फाइल है और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मफूल है। अब देखते हैं इसमें फाइल और इसमें मफूल कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फाइल कौन है, अब आप पहले जाएंगी वजन पर कि फाइलुन के वजन पर कौन सा इस्म फिट हो रहा है। अब आप कहेंगी कि यह इस जुमले में इसमें फाइल ये है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मफऊल कौन सा है तो आप फिर फौरन मोल्ड पे जाएंगी, शेप पे जाएंगी, केक टिन पर जाएंगी और सोचेंगी मफऊल के वजन पर कौन सा इस्म आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये इस्म आ रहा है, आप इसको कहेंगी ये इसमें मफऊल है। तो याद रखें, इसमें मफऊल और इसमें फाइल ये वजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एट द सेम टाइम उनके अंदर वो एसेंस काम करने और काम करवाने का मौजूद होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो काम कर रहे हो या उन पर काम हो रहा हो। अब अगर आप लोगों में से क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो बस हैंड रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा एहसान है, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, वही है जो चीजों को आसान बना देता है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा दूसरी चीजों की तरफ। कि देखिए इसमें मसदर, आप इसको जानते हैं, जाना पहचाना लफ्ज है। अब
क्योंकि आइندہ जब भी हम बोलेंगे तो फिर हम काम का नाम ये लफ्ज यूज नहीं करेंगे, हम मस्दर ही बोलेंगे, इसमें मस्दर भी नहीं बोलेंगे। जब हम मस्दर बोलेंगे आपको समझ जाना होगा कि हम किसी काम के नाम की बात कर रहे हैं। काम के नाम को ही मस्दर या इसमें मस्दर कहते हैं। मस्दर इस्म होता है, इसलिए तो या तो शुरू में अल लगा के देंगे या आखिर में तनवीन लगा के देंगे, तो आप आराम से पहचान लेंगी कि ये फेल नहीं, ये इस्म है और फिर ये मस्दर है, क्योंकि ये काम का नाम है तो ये मस्दर है। फेल के नाम को ही मस्दर कहते हैं। तो आपने इसकी अलामत क्या देखी? इसकी अलामत आपको अल या तनवीन। मस्दर में काम का मफहूम तो होता है लेकिन जमाना नहीं पाया जाता। जैसे लिखना, अगर हम कहें लिखना अच्छी बात है, तो देखिए अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कोई लिखता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। बस एक बात पता चल रही है कि लिखना अच्छी बात है। तर्जुमा करते वक्त जैसा कि अभी हमने लिखना यूज किया, तो उमूमन ना का इजाफा करते हैं आखिर में, जैसे इस्तिगफारुन। अब देखिए, अब अगर आपको इस्तिगफार के डिफरेंट, अभी अगली स्क्रीन पे हम डिफरेंट अल्फाज भी लाएंगे, तो जैसे ही आपको तनवीन यहां नजर आ गई तो आपको अब बिल्कुल, इस्तिगफार क्या है? एक अमल का नाम है ना, एक काम करने का नाम है। बख्शिश तलब करना, बख्शिश तलब की जाती है ना, तो एक फेल हुआ। लेकिन जब आपने इसके ऊपर यहां तनवीन देखी तो फौरन आप इसको मस्दर के कॉलम में लिख लेंगी। इसी तरह तालीमुन, यहां पे आपने देखा तनवीन, इस तनवीन ने आपको बताया, क्योंकि तनवीन सिर्फ इस्म पर आती है। यहां देखिए सिर्फ लगा दिया मैंने, तो इसमें कोई शक नहीं, इस्म पर ही तनवीन आती है। अगर तनवीन दिख गई तो इस्म होने का कोई शक शुबा नहीं, कंफर्म है कि वो इस्म है। तो इस्तिगफारुन, बख्शिश तलब करना, इसका तर्जुमा जब करेंगी तो बख्शिश तलब किया, करता है, करूं, किया जाएगा टाइप का नहीं करेंगी। आप क्या करेंगी? क्योंकि यहां तनवीन दिख रही है तो आप तर्जुमा करेंगी बख्शिश तलब करना। तालीमुन, सिखाना। अब देखते हैं कैसे आप मस्दर और फेल को फर्क कैसे करेंगी। अगली स्क्रीन पे देखते हैं मस्दर और फेल में फर्क कैसे मालूम करेंगी। मस्दर जो है वो सिर्फ काम का नाम होता है, सिर्फ उसमें नाम पता चलेगा, कोई जमाना नहीं पता चलेगा, कोई टेंस नहीं पता चलेगा। और पहचान क्या होगी? कि ये अल या तनवीन के साथ आ रहा होगा। जबकि फेल जब होगा तो उसमें काम और जमाना दोनों पाया जाएगा, और ये जमाने की अलामत होती हैं जो कि अगली टर्म में इंशाअल्लाह ताला आप समझ जाएंगी कि फेल की क्या अलामतें होती हैं। जैसे इस्म की अलामतें आपको पता चल गई ना, कि तनवीन और अल और बहुत सारी बातें, इसी तरह से फेल की अलामतें भी इंशाअल्लाह ताला आगे पता चल। अभी असल में आधी बात पता है तो इस वजह से डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पढ़ाना भी हमें। तो फेल जो है वो काम और जमाना दोनों उसमें पाया जाता है, ये तो डेफिनेशन आपने याद ही कर रखी है। और फेल, ये फेल के सेगे पर हो, सेगा मतलब वही कि वो जो उसकी फॉर्म आप याद करेंगी, डिफरेंट फॉर्म सेकंड टर्म में याद करेंगी ना, तो उन अलामतों पे, उस शेप के अंदर जो अल्फाज आएंगे उससे आप पहचान लेंगे कि ये फेल है। कभी भी अल या तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि अल और तनवीन किसकी अलामत है? वो तो इस्म की अलामत है। अगर ये अल तनवीन आ गई तो ये फेल से जंप करके मस्दर में चला जाएगा। यहाँ पे आखिरी हर्फ पर आपको जबर या पेश ही नजर आएगी, ठीक है, तनवीन नहीं नजर आएगी, अल नहीं नजर आएगी, क्योंकि ये तो फेल है। तो ये हो गई आपकी कि कैसे आप, अगर हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब दे दें तो उसमें से कैसे आप अलग करेंगी। जिसपे अल दिख जाए उसको मस्दर में कर दीजिएगा, जिसपे तनवीन दिख जाए उसको भी मस्दर के कॉलम में कर दीजिएगा, जिसपे जबर या पेश हो फेल में कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें, इससे प्रैक्टिस ले लेते हैं। इस्तगफरा, ये सारे वजन आप अगली टर्म में इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो जाएंगे। इस्तगफरा, उसने बख्शिश तलब की, तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए फेल है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल रहा है तलब किया, उसने बख्शिश तलब किया, की मतलब किया, पास्ट टेंस का पता हमें चल रहा है। तो यहाँ पे
अमल भी पता चल रहा है, साथ में जमाना भी पता चल रहा है, तो ये हो गया हमारा फेल। इसी तरह यस्तगफिरु, ये शुरू में जो या है ना, ये अलामत है फेल की। तो वो बख्शिश तलब करता है, करेगा। तो यहां भी देखिए आपको दिख रहा है, इसका तर्जुमा जब हमने किया प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो ये भी फेल हो गया क्योंकि इसमें जमाना पाया जा रहा है और मस्दर में तो जमाना होना नहीं चाहिए था। इस्तिगफारुन, यहाँ पे देखिए तनवीन आ गई। जैसे ही तनवीन आई हम समझ गए कि ये तो मस्दर है, ये तो नाम हो सकता है, और इसका तर्जुमा है बख्शिश तलब करना। यहाँ पे तर्जुमा हम करेंगे बख्शिश तलब करना, की करता है, करेगा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इस्तिगफारुन, बख्शिश तलब करना, और ये मस्दर में चला गया। एक और एग्जांपल देख लें, अनजला, उसने नाजिल किया। ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी ही सेकंड टर्म में, कि पता चल जाएगा जैसे अभी आप इसम को पहचानते हैं ऐसे ही फेल को भी पहचानने लगेंगे। तो यहाँ पे हमने जब इस फॉर्म को देखा तो मुझे पता है कि ये पास्ट टेंस की फॉर्म है, इसका रूट लेटर है नून जा लाम, नाजिल, नाजिल करना, उतरना, और अनजला के फॉर्म में जब आया तो ये फेल बन गया और पास्ट टेंस की फॉर्म है, उसने नाजिल किया। यहाँ पे आपको जमाना दिख रहा है तो ये फेल है। वो नाजिल करता है, करेगा, तो ये भी क्या है, फेल है, क्योंकि यहाँ पे काम भी दिख रहा है और हमें जमाना भी नजर आ रहा है। इंजालुन, अब देखिए यहाँ तनवीन भी बता रही है हमें, और इसका तर्जुमा हम करेंगे नाजिल करना, ये मस्दर हो गया क्योंकि ये काम का नाम है, इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा है, तो ये हो गया नाजिल करना। तो ये फेल और ये है मस्दर। मस्दर आपको हमेशा इसका तर्जुमा जब आप करेंगी तो एज अ नाउन करेंगी, एज अ इस्म करेंगी, क्योंकि ये काम का नाम है। मस्दर की ही एक किस्म है जो कि आपकी बुक में है, वो है मस्दर मीमी, एंड वेरी इजी, बहुत ही आसान है। वो मस्दर जो मीम से शुरू हो उन्हें मस्दर मीमी कह देते हैं, ठीक है। वो मस्दर जो मीम से शुरू हो मस्दर मीमी कहलाता है। मसीरुन, आपने इसका तर्जुमा किया होगा लौटना। मशरबुन, पीना, कि वो मस्दर, अब कैसे आपको पता चला कि मस्दर है, आपको तनवीन दिख रही है ना, और ये इस रूट लेटर से हमें लौटने का पता चलता है, मसीरुन तो लौटना, मशरबुन पीना, तो वो मस्दर जो मीम से शुरू हो उन्हें मस्दर मीमी कहते हैं। एक और देखिए, और आपको तर्जुमा करना न सिर्फ आसान लगेगा बल्कि जब आप तर्जुमे में ये अल्फाज आएंगे तो आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। एक आखिरी किस्म जो आज लेते हैं वो है इसमें मर्रा। ये चूंकि हम लोगों ने साकिन कर देते हैं आखिरी लफ्ज को जब, तो ये ताए मरबूता की ये डॉट भी गायब हो जाती है और हरकत भी, तो ये इसमें मर्रा हो जाता है। वैसे ये था मर्रतुन, और इसके ही वजन पे आने वाले अल्फाज जो है वो इसमें मर्रा कहलाते हैं। आइए पहले उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में हम कुछ अल्फाज को कैसे बोलते हैं। एक बार देखना, है ना, ऐसे हम बोलते हैं एक बार देखना। एक बार देखना ये चीज जो है हमें अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के हो लड़की हो, हर किसी को ये बात जरूर सिखानी चाहिए, जो कि हमारे कल्चर, हमारे माहौल के अंदर नहीं है, जो कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छी इस चीज को पकड़ी है। एक बार देखना, वो अगर किसी चीज को एक बार से, वो कभी किसी, आपको कोई घूरता नहीं मिलेगा। आप ट्रेन में बैठे हो, चल रहे हो, शॉपिंग सेंटर में हो, किसी भी हाल में हो, कोई आपको घूरेगा नहीं, देखेगा नहीं। एक बार देखेंगे दोबारा नजर वो नहीं करते, जबकि ये इस्लामी शार था, ये हमारा तरीका होना चाहिए था कि एक बार के बाद दूसरी नजर न देखें। अक्सर तो गलत अंदाज से लोग देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं, जिसको कि शहवानी कहते हैं, और अक्सर कभी ये भी होता है हमदर्दी में भी हम लोग घूर रहे होते हैं। किसी डिसेबल को देखा, किसी को व्हील चेयर में देखा, तो अब हमदर्दी में ही उसको देखते रहे, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हम उसकी मदद तो नहीं कर रहे हैं, उसको कॉन्शियस कर रहे हैं। उस अंग्रेज कौम जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ही इस बात पे ट्रेन करती हैं कि वो एक बार से दोबारा नहीं देखते। आप पूरा चेहरा कवर करके, उन्होंने शायद पहली बार जिंदगी में ऐसा इंसान देखा हो जो ऊपर से नीचे ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है, ढका हुआ है। आप मॉल में चले जाएं, आपको
کوئی اچانک میں بھی مطلب تعجب میں بھی ہم گھورنے لگتے ہیں نا, ہماری عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ غلط انداز میں بھی گھورتے ہیں, ہمدردی میں بھی گھورتے ہیں, کبھی حیرت میں بھی گھورتے ہیں. تو یہ طریقہ ہی بن گیا ہے. تو ہمیں اپنی نئی جنریشن, اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالنی ہے کہ بس ایک بار کے بعد دوسری نظر نہیں. تو بہرحال ایک بار دیکھنا. ہمیں اردو میں اس بات پہ کے لیے ہمیں 3 لفظ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ایک بار دیکھنا, ایک بار پلٹنا, ایک بار بے ہوش ہونا. جبکہ عربک میں صرف ایک ورڈ آتا ہے اس وزن کے اوپر, اور وہ یہ پورا میننگ دے دیتا ہے. کسی کام کو ایک بار کرنے کے لیے عربی میں فعلتن کے وزن پر اسم آتا ہے. یہ دیکھیں, یہ فعلتن کا ہی وزن ہے. میں کھول کے دکھا دوں. اصل میں را 2 بار آیا نا, تو میم یہ مرتن, یہ شد کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا زبر ہو. تو یہ فعلتن کا ہی وزن آیا. ٹھیک ہے, وزن جب کہیں گے تو آپ مرتن وزن نہیں کہیں گی, فعلتن کے وزن پر یہ لفظ ہے فعلتن. اس وزن پر اسم جب کبھی آتے ہیں تو وہ, مائک میوٹ کر لیں پلیز, تو وہ دیتے ہیں میننگ ایک بار کا. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس طرح کا دیکھیں گے, جب آگے آئے گا اور آ چکا ہوگا ہو سکتا ہے, فعلتن کے وزن پر, تو اس قسم کے اسم کو اسم مرہ کہا جاتا ہے, اور ترجمہ کرتے وقت اس میں ایک بار کا میننگ ایڈ ہو جاتا ہے. جب ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو صرف فعلتن جیسا ورڈ آیا, تو اس میں یہ ایک بار کہاں سے آ گیا. تو اب آپ کو پہلے سے ہی انشاءاللہ تعالی پتہ رہے گا ترجمہ میں کہ یہ فعلتن کے وزن پر کچھ اسما جب آتے ہیں تو وہاں پر ایک بار کا مفہوم ایڈ ہو جاتا ہے. جیسے نظرتن, ایک بار دیکھنا, کرتن, ایک بار پلٹنا, سکرتن, ایک بار بے ہوش ہونا. دیکھیں صرف ایک لفظ آیا اور یہ پوری اتنا لمبا چوڑا ترجمہ ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں ہے. اگر وہ ان لینگویجز میں ہوتا تو انسائکلوپیڈیا ہوتا. یہاں پہ دیکھیں قرآن سے ایگزامپل دیکھیں, یہاں پہ کرتن, اور یہاں دیکھیں ترجمہ مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ جانا. تو آپ یہاں دیکھ رہی ہیں ایک بار لوٹ جانا, یہ پورا اس کی جگہ پہ یہ کرتن. یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آخری, یہ اس کا وزن جو ہے وہ کرتن ہی ہے. یہ تن جو ہے تن میں مجبوری کی حالت میں اعراب کی وجہ سے یہ چینج ہو گیا. تو وزن کو آپ ہمیشہ, وزن جو ہے وہ واحد میں ہوتا ہے, وزن نکرہ میں ہوتا ہے, اور وزن رفع میں ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں وزن کے لیے ہیں. کیا کیا 3 چیز بتائی ہم نے وزن کے لیے؟ لکھ دوں میں یہاں پہ جس سے آپ کے پاس سلائیڈ میں ہو جائے. واحد, نکرہ, اور تیسری کیا چیز بتائی میں نے؟ واحد, نکرہ اور رفع. یہاں پہ یہ نصب کی حالت میں وہ چلا گیا. کسی بھی اسم کا وزن جو ہے وہ اس شیپ میں نکلتا ہے, مطلب ان تینوں چیزوں کو لے کے بنتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اسم جمع میں ہے تو آپ اس کو واحد میں کریں, نکرہ میں لے کے جائیں, اور رفع کی حالت میں اس کا وزن. ایک دوسری آیت یہاں دیکھیں کرتن, اور یہاں دیکھیں ایک بار دوبارہ پلٹنا ہو, ایک بار دوبارہ جانا ہو. تو یہ ایک بار کا مفہوم دیتا ہے کہ ایک بار اگر پلٹنا ہو ہمیں تو ہم کیا, یہ یہاں پہ پورا آپ پڑھ لیجئے گا بعد میں. بس اس کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالی ان سوال کی روشنی میں اگلی کلاس کریں گے, یا پھر میں ان سوالوں کا جواب جو ہے گروپ میں شیئر کر دوں گی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.